So, hi everyone. Speaking to this episode of Page 3 on News 9 with me, Sakshi Singh Litoria, is none other than the Anurag Kashyap. Anurag sir, thank you so much for speaking to News 9. Thank I'm a you. huge fan of your filmography, and the new one is coming, and it looks like Anurag Kashyap is back in his flavor. Yeah. I never left, but yeah, it is back to my home ground. Absolutely. So, what can be expected from Nishanchi? Because the trailer is looking marvelous and something that we've been missing for a very long period of time as far as Hindi cinema is concerned. And this is just storytelling, entertainment, and the kind of kahani which is so rooted in North India, and a lot of fun, a lot of Kanpuriya, Paketi, lots of music that we have loved doing so much. It's a pure nostalgia trip. So while you were making the film, while you were having thoughts about how to go about it, what were the challenges? Were there any mental blocks that you faced? I didn't have. I had anxiety in the sense that the double role that my team wanted to pull off because everybody got so excited with the script, and they were like, let's shoot a double role, which is unlike what we have seen before, and where the two brothers actually look very different and natural, not organic, not fake beard, not fake mustache, but organic, and like bodily also they look different, and shoot it apart 2 months, 2 months apart from each other, which is not how double roles have been shot so far in anywhere. Mm-hmm. Mm-hmm. So That's that really kind of a interesting. thing. So I had anxiety because I'm very scared of technology and whether we'll be able to pull it off or not. And that's where I got the assurance from the whole team that leave that to us. You focus on your storytelling and performances, and that's what I kept focus on, which is why, which is what was exciting, challenging, and also made me anxious. Sir, I know the casting is a very separate thing that one does for the film, but did you participate in, I do. casting? You I, I, do? I don't. Casting is something I never leave to anyone else. That's really But amazing. So when you had people on board with Shanchi, I want to understand what were the criterias that these actors that you have selected no, ticked off. my criteria was like I wanted somebody to be Bablu first. The thing was we cannot start casting till Bablu comes on board. Yeah. Gautam Kishan Chandani I've been working with since Black Friday Yes, yes. and his team. So अभी जब तक बबलू नहीं मिलता तब तक ये फिल्म का कोई प्रोसेस शुरू नहीं होता. हमें बबलू मिला around COVID. Around COVID is when I found Bablu, and I had no idea that कौन है क्या है. सिर्फ एक सिंपल सा उसका मोनोलॉग देख करके दूसरे एक्टर्स का कि हाँ लगा लड़का बिहारी है. फिर मिला तो पता चला ये तो महाराष्ट्रन है, ऊपर से ठाकरे है. तो फिर वो था कि बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो फैमिलीज के यहाँ पे इंडस्ट्री में सब कोई लॉन्च होता है ना, तो वो था कि अगर उनके कोई प्लान हो किसी तरह के, और प्लान्स थे मतलब इन द सेंस, बट आई सेड कि अगर ये फिल्म करनी है तो फिर ये मतलब ये लॉन्च वॉन्च की तरह नहीं देख सकता हूँ ना, बिकॉज आई डोंट डू लॉन्चेस. एंड वन थिंग, सेकंड थिंग इज ही हैज टू बिकम द कैरेक्टर एंड दैट विल टेक टाइम, एंड ही हैज Hmm. टू द फिल्म, एंड ही कमिटेड टू द फिल्म, एंड Hmm. there was a total go ahead कि तुम अपने हिसाब से करो. And yes, Aishwarya was so invested in it that whatever came his way, he also kept saying no to it. And he was like, this is Hmm. where I'm focusing. And he became Bablu. And after he became Bablu, is when I told him it's a double role. It's not two brothers. And then he took it like a challenge. For Vedika, my brief was हमें कानपुर की माधुरी दीक्षित चाहिए. तो अभी हम वैसी लड़की ढूंढ रहे थे. फिर एक वीडियो में देखी, हाँ, लेकिन वो भी बॉम्बे की निकली. और Hmm. फिर उसके बाद उसके साथ भी वही चीज हुई, सेम एक्सरसाइज. आई डू ऑल द सेम टाइम व्हेन आई टेक यंग कम न्यू कमर्स. Hmm. बहुत हंगर था कि दैट कैन डू मोर देन दैट, बट व्हाई एम आई नॉट गिवन. Hmm. होता है ना, यू आर एज लिमिटेड एज हाउ समबडी सीज यू. Absolutely. देन शी आल्सो कमिटेड टू द रोल. Hmm. I had to take guarantee from everyone that I don't want it to be seen anywhere else. So वही उस तरह का कमिटमेंट जब एक्टर्स इन दोनों से मिला और जब इन दोनों की मेहनत हुई 2 साल बाद, जब when Amazon MGN came on board, then we started doing the actual casting. Hmm. Then that's when Gautam and everybody just we got on to it, and
बहुत मजा आया मतलब कास्टिंग करने में, बहुत ही एंटी कास्टिंग हुई कि कुमुद मिश्रा, ईशान, आप जिस तरह के रोल में हमेशा देखते आए हो, जी। एक सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव फादर और वेरी आइडियलिस्टिक मैन, हमसे हम लोग उल्टा करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर्स सब सब वो टीम जो है इकट्ठा करने लगे। सबसे लास्ट में मोनिका कास्ट हुई बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड अ वुमन हु कैन गो वुड प्ले अ रोल ऑफ फ्रॉम 20 to 50 एंड वो भी था कि easier to make a younger person look older than an older person look younger. Right. That was That those were the challenges, plus range, acting range on Monica Pawar is an outstanding, incredible actor. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसने अपने आप चेंज की, वॉइस भी चेंज की, चेहरे का लुक भी चेंज किया। यूथ दिखता है जब वो 20 की है, और वो यूथफुल हार्मोनल एनर्जी भी दिखती है जब वो 20 की है। हाँ, और जब वो एज होती जाती है तो उसके अंदर वो ठहराव आता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज जाती है, सब कुछ ऐसे चलती है जैसे बहुत कमाल का रेंज है उसका एज एन एक्टर। तो सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कानपुर आप दिखाने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा बकैती होने वाली है बहुत बिकॉज सारी बकैती होने वाली है। गोरखपुर क्योंकि दिल के करीब है सर, तो वो कनेक्शन कैसे जोड़ा जाएगा यहाँ पे? मैं चाहती हूँ कि गोरखपुरिया से वो कनपुरिया कैसे निकलने वाली है इसमें। नहीं, कनपुरिया तो कनपुरिया निकलने, कनपुरिया बकैती हमने बहुत सुनी है, बट बड़े होते हुए स्कूल कॉलेज में, लखनऊ में, कानपुर में। हाँ, मेरे अंदर कनपुरिया नहीं है। हमने जो फिल्म लिखी उसमें हमें हमें जब जमीन मिलती है ना कि फिल्म आप कहानी लिखते हो तो बोलते हैं कहानी कहाँ सेट है, कानपुर में सेट है। फिर वो जी। रंजन चंदेल जो हमारे को राइटर है वो कानपुर के हैं। शाश्वत त्रिवेदी जो मेरे डीए थे जिन्होंने ये फिल्म देखो गाना लिखा है, वो कानपुर के हैं। तो फिर कानपुरिया वहां से आती है, या कानपुर जाके आती है। कानपुरिया बहुत सारे कानपुर के कमाल के फनी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आप देखते जिनके वीडियोस, तो कनपुरिया बकैती उधर से आई है। कनपुरिया बकैती इन लोगों ने कानपुर में जाके सीखी है, ये लोग कानपुर में रहे हमारे एक्टर्स। तो बकैती तो या यूथ की है, यंगर जनरेशन की है। और बाकी बाकी फिर उसका तो कुछ नहीं, बस मजा ही मजा आया और क्या। काफी यंगस्टर्स एंड न्यू कमर्स आपने सर इसमें लिए हैं, आपने खुद भी ये मेंशन किया। तो क्योंकि आप बोल रहे हैं कि यूथ के बीच में भी बकैती बहुत होती रहती है, तो व्हाट फन डिड यू हैव ऑन सेट विद द न्यूअर फेसेस? व्हाट No, केम एज we अ had such सरप्राइज टू यू? incredible good actors who just I let them be in the sense, ऐसे बकैती है करो, और वो उन्होंने की, और वो अपने आप में ये सीन्स बनते जाते हैं, उसका ह्यूमर ही कुछ अलग हो जाता है। सर, आप साउथ क्यों चले गए अनुराग जी? दैट्स द प्राइम क्वेश्चन ऑफ द ईयर। मैं थक गया था यहाँ पे फिर सिनेमा और उसके बातें नहीं होती, वो जॉय नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बॉक्स ऑफिस डिस्कस होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब लोग सेकंड गेस ही कर रहे होते हैं हर चीज, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कितना चलेगा कैसे चलेगा। लेकिन फिल्म तो बनाओ यार पहले ईमानदारी से, चलेगा नहीं चलेगा किसी के हाथ में नहीं है। और उसी में सब लोग फॉर्मूला रिपीट करते हैं, एक फिल्म चलती है उसके फिर उनको लगता है अच्छा एनिमल चल गई तो अब ब्लडी वायलेंस करते हैं हम लोग। हाँ, तो बिना सिर पैर के ब्लडी वायलेंस हो रहा है। सैयारा चल गई तो अब नया फॉर्मूला चालू हो जाएगा, वापस जो है ना वैसी लव स्टोरी करते हैं। सैयारा में कितना कन्विक्शन है, कितना कन्विक्शन है। तो वो चीज जो है ना, अच्छी चीजें जो आ रही हैं वो कन्विक्शन से आ रही हैं, एक आदमी के इंडिविजुअल विजन से आ रही हैं। वो कोई फॉर्मूला, कोई यूनिवर्स, कोई चीज रिपीट करके उससे नहीं आ रही है। Right. Sir, this photo that recently got viral when you and the crew is actually touching feet of Manoj Bajpayee. Would you like to enlighten us on what happened there? Manoj, with increasingly he's looking younger and younger, and he's just doesn't stop. He is working so much. He's like, भाई साहब रुकते ही नहीं है, और अभी भी शूट ही कर रहे हैं वो नवी मुंबई में। जैसे फोन पे बात होती है और वो नवी मुंबई में शूट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हम लोग कब साथ में काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये आप थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा हम लोग थक जाते हैं उनकी एनर्जी के सामने, इसलिए हम लोग उनके पैच हो रहे हैं कि भाई आप लेजेंड हो और कुछ नहीं है। Okay, and last but not the least, sir, I loved your acting in Maharaja. I want to know, when will I see Anurag Kashyap as actor again? I think next release is Dakat, end of the, and Dakat is the next film as an actor.
That's really nice, and I'm really excited. All the very best for Nishanchi sir. I'm looking forward to it because we have been craving good stories, good cast, young talent in our cinema. We are bored of watching the same old thing on our screens. So I hope this brings us joy, and a lot of Baketi awaits in the theaters. Thank you so much for speaking to us. Sir. Thank you so much.